So let's start with the our previous part of the discussion. तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे कल रुके थे वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है. देखिए लास्ट टाइम yesterday we have discussed about the two parts, that is analysis problem and design problem. Then we have discussed about the tension member. What is tension member? Then what are the clauses to be referred for the design and analyze the tension member? So it is a fourth, that is a fourth chapter in your IS 1984 में फोर्थ क्लॉज है. सो वहाँ पे हमने क्लॉजेस देखे थे, कितने सेक्शंस है वगैरह वगैरह. तो वहीं से फिर से स्टार्ट करता हूँ. समय पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि तो ये 45 मिनट्स का टाइम लिमिटेशन होता है, इसलिए तो लेट एडमिशन तो होता रहेगा. जैसे एडमिट होते रहेंगे मैं एडमिट करूँगा. चलो कंटिन्यू करता हूँ. तो देखिए एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. ये here it is one, this is called as a, here it is a gusset plate, and these are the four types of tension members are connected over this joint. So this is for example मैंने बताया आपको. Then यहाँ पे देखिए different types of sections to be used as a tension member. You can use a single round section, square section, or number of cables. Is it cables compound of small wires? Single and double angle you can use as a tension member. I section, a T section, or some combined section, built-up section also can be used as a tension member. So from your point of view of your examination, mostly that is your syllabus says single angle, double angle, I section, channel section. These are the mostly asked questions from the past history of your question papers. Is it? So concentrating upon these sections, angle, I, channel, we have to solve different types of problems of analysis and design. तो बात कहाँ पे चल रही थी हम लोगों की? व्हाट इज टेंशन मेंबर? टेंशन मेंबर की ये सारे सेक्शंस हो गया. अब सेक्शन मेंबर में पहले स्टार्ट करते हैं एंगल से. ठीक. अभी इस एंगल को एनालाइज करने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करना है और डिजाइन करते समय कौन से स्टेप फॉलो करना है, ये पहले हम देख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए टेंशन मेंबर में हम लोगों ने जो क्लॉजेस देखे थे वो क्लॉजेस कुछ इस तरह से है. ये टेंशन मेंबर है ना. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो सेक्शन 4 में है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर. सिग्मा 80 एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस which is permitted in tension member is 0.6 FY. Okay. Then there are 4 cases. This is the first case of single angle. ठीक. Then there it is another case. In the case of pair of angles है back to back connected to each angle वगैरह वगैरह. So one by one start करता हूँ. ठीक है. देखिए फर्स्ट जो केस है सिंगल एंगल की, पहले से लास्ट टाइम कल जो किया था एक 2 मिनट में उसको रिवाइज करता हूँ. व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी? लोड कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय P. इज इट? So this P is equal to load that can be carried by a tension member, and its formula is sigma 80 multiplied by net area AN. So what is axial tensile stress? Axial tensile stress is a, अभी अभी देखा 0.6 FY. So 0.6 FY मोस्टली 250 होता है. तो 250 का 0.6 किया जाए तो 150 MPa बनता है. तो 150 MPa इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 80. आपको टेंशन मेंबर में जब तक FY का वैल्यू 250 है तो सिग्मा 80 का वैल्यू आएगा 150. इट इज फिक्स्ड फॉर थ्रू आउट द चैप्टर. अदरवाइज FY का वैल्यू सपोज 240 दिया तो 0.6 इंटू 240 करके लेना है. ठीक. तो सिग्मा 80 हैज द वैल्यू ऑफ 0.6 FY. It will not change throughout the your chapter. Now this is the net area according to the type of joining of the member with gusset. According to the section of the tension member, there are in all 4 cases to calculate net area of the angle section. ठीक है.
तो पहले से देखिए लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब स्ट्रेस का वैल्यू 150 फिक्स हुआ। हम नेट एरिया के बारे में 4 केसेस है किस तरह से वो डिस्कस करें। बिफोर दैट, व्हाई द नेट एरिया इज कंसिडर्ड इन टेंशन मेंबर, दैट इज वन ऑफ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली आस्क्ड। तो है क्या ये, देखिए समझ जाओगे आप टेंशन मेंबर में। देखिए मैं एक टेंशन मेंबर निकालता हूँ, ये देख। So here it is somewhat a rectangular section. I will flat plate as a tension member. तो ये रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट है जो कि टेंशन मेंबर के तौर पे, ये टेंशन मेंबर के तौर पे यूज करना है। अब इसे दूसरे प्लेट यानी गसेट प्लेट को ज्वाइन करते हैं हम लोग इस तरह से। दूसरी वाली प्लेट रहेगी नीचे जिसको हम कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये दूसरी वाली प्लेट है जिसको आप कनेक्ट करोगे by using, here it is the bolt or rivet. This is the force acting in the member and this one is the gross area of the plate. अब आप ये सोचिए यहाँ पे एक होल डाला हुआ है, किस लिए? टू प्रोवाइड द रिवेट। यहाँ पे रिवेट डालने के लिए होल प्रोवाइड किया। अब जब यहाँ पे ऐसे आप खींचोगे, when it is pulled by a tensile force, here it is joined with another plate called as gusset plate through the help of this bolt. Now this is a gross section and if you take section over here, यहाँ पे अगर सेक्शन लिया जाए किस तरह से आएगा यहाँ का सेक्शन, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जो सेक्शन है, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो ये बाकी बचा हुआ क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला। At this section, if you draw the cross section of the plate, it will be somewhat like this. यहाँ पे होल होगा, ठीक है ना। तो ये जो होल है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे होल, ये जो होल है इस रिवेट के लिए प्रोवाइड किया है। तो देखिए फिर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिस इज अ ग्रॉस एरिया, isn't it? And here it is, if you take the section through the rivet, this will be the net area after deducting the whole provided for rivet। अगर इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो नेट एरिया। अब आप ही बताओगे जब हम यहाँ पे खींचोगे तो ग्रॉस एरिया स्ट्रॉन्गर है और ये होल वाला एरिया वीकर है, तो कहाँ पे फेल होगा? डेफिनेटली इट विल फेल इन दिस सेक्शन because it is a weak one, isn't it? This is the strong one. तो यहाँ पे फेल होगा। इसलिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें एरिया यूज किया जाता है नेट एरिया। जो फेल होने वाला एरिया उसी को फॉर्मूला में यूज करना है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे वीक सेक्शन है बिकॉज यहाँ पे होल प्रोवाइड किया गया इस तरह से। ये होल प्रोवाइड होने की वजह से आपका यहाँ पर सेक्शन वीक होता है, वहां पे फेल्योर होता है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग नेट एरिया, ठीक है। अब इस नेट एरिया का कैलकुलेशन किस तरह करना है देख लेते हैं। देखिए इसको अगर आपने विड्थ बोल दिया, इसको अगर थिकनेस बोल दिया, ये जो है दिस इज अ डायमीटर ऑफ होल, यानी डायमीटर ऑफ होल यानी DO। तो ये जो बाकी बचा हुआ जो मैं ग्रीन कलर से निकालूंगा, ये जो ग्रीन कलर से निकाला एरिया बाहर वाला ये वाला, तो ये एरिया कितना आएगा? देखिए दैट इज नेट एरिया। ये विड्थ B इनटू ये थिकनेस T, ये टोटल एरिया हुआ। उसमें से ये रेड जोन माइनस करेंगे, कितना हुआ? विड्थ D0, थिकनेस T। ओके, अगर T कॉमन निकाला जाए तो B माइनस D0 इंटू T, दिस इज द नेट एरिया, इजंट इट? तो नेट एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया देखिए और एक बार। ग्रॉस एरिया में से होल एरिया माइनस करना। यहाँ पे होल आने वाला, ये ऐसे आने वाला, ये बोल्ट का होल ऐसे इस तरह से रहेगा, है ना। ये इधर ये देखिए इस तरह से जो है, ये जो राउंड बोल्ट का होल है, यहाँ से मैंने सेक्शन निकाला, इधर का हाफ सर्कल यहाँ पे निकाला। तो ये जो एरिया माइनस करना है सेक्शन में, तो ये एरिया आएगा, देखिए B माइनस D0 इंटू T। दिस इज अ नेट एरिया यू हैव टू फॉलो। ओके, नेट एरिया क्यों लिया जाता है? बिकॉज व्हेन द बोल्टिंग और रिवेटिंग इज प्रोवाइडेड, द होल्स आर प्रोवाइडेड एंड ड्यू टू दैट द सेक्शन गेट वीकन्ड एंड द वीक सेक्शन विल फेल फर्स्ट। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेट एरिया एंड नेट एरिया इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द होल एरिया। ओके, होल एरिया यानी HOLE, होल एरिया यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस एरिया। अब चलता हूं आपके
इसको सेव करता हूँ, बाद में कहीं काम आया आपको तो डेस्कटॉप पे कर देते हैं। चलिए आ जाता हूँ। देखिए टेंशन मेंबर में अब पहले से करता हूँ। फर्स्ट केस है सिंगल एंगल के, सिंगल एंगल वाली से है कनेक्टेड थ्रू, ओके, कनेक्टेड थ्रू वन लेग टू द गसेट। अब गसेट प्लेट किधर है वगैरह सब दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देख, थ्री डायमेंशन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, आपका ड्राइंग में से बेहतर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे को भी। अब ये देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। इसके पीछे हमने एक प्लेट लगा दी है, ये प्लेट कनेक्ट किया, यहाँ पे होल डाला हुआ। इस होल की वजह से इस पीछे वाले गसेट प्लेट के साथ, ये पीछे वाला गसेट प्लेट के साथ ये एंगल आप कनेक्ट कर रहे हो। अब सेक्शन निकालता हूँ जो आपको यूज करना है। ये सेक्शन है, ये देखिए, बोर्ड के सेंटर में से होते हुए ये सेक्शन, इस सेक्शन को आपको साइड में निकालना है। तो ये जो लेग है ये है कनेक्टेड लेग गसेट प्लेट के साथ, और ये जो है गसेट प्लेट से बाहर जा रही है आउटस्टैंडिंग लेग। पीछे गसेट प्लेट, ये कनेक्टेड लेग, ये आउटस्टैंडिंग लेग, ये यहाँ पे है रिवेट जिसका प्रोवाइड किया होल, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ, इस तरह से करना है। देखिए अब पहले साइड व्यू में दिखा देते हैं। तो ये एंगल इस तरह से, उसके पीछे ये आ रहा है गसेट प्लेट, उसके पीछे ये गसेट प्लेट है, और यहाँ पे अभी अभी जो बात किया था वो है रिवेट का होल, ओके। तो यहाँ पे रिवेट का होल है इस तरह से। अब साइजेस क्या बने देखिए, दिस इज सपोज ISA ले लेता हूँ, कुछ तो साइज ऑफ एंगल ले लेता हूँ तब तक आपको समझ में आने के लिए। ISA 100 बाय 10 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तब तक। तो ये हाइट हुआ 100 mm, ये विड्थ हुआ 100 mm, और ये थिकनेस 10, ये थिकनेस 10, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द रिवेट ले लेता हूँ तब तक 20 mm। तो डायमीटर ऑफ होल कितना हुआ, 1.5 mm से एक्सेस करना है, तो वो डायमीटर बना 21.5 mm। तो ये डायमीटर बन गया 21.5। ये समझ में आया ना। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे रिवेट डाला हुआ है, तो ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द होल, ओके। यहाँ के अंदर यहाँ पे हमने बोल्ट डाला हुआ है जैसे अभी मैंने निकाला था। तो ये बोल्ट यहाँ पे डालने के बाद इस बोल्ट की जो डायमीटर है ये 21.5 होल का डायमीटर रहेगा। तो सेक्शन में ये जो मेंबर है, मेंबर में 21.5 हाइट वाला होल आएगा। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन निकालता हूँ मैं, आपको समझ में आने की। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको होल के तौर पे इस एंगल से माइनस करना है। कर लेते हैं, किस तरह से करना है देख लेता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, तो आपको ए नेट निकालना है। तो ए नेट निकालने के लिए फॉर्मूला जो IS कोड में सिंगल एंगल के लिए बात करें तो लिखा था, कल तय किया था हमने A1 K A2 एंड व्हाट इज द K वैल्यू, K वैल्यू इज 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। दिखा देता हूँ, ये देखिए A1 plus K A2, this is the clause says for single angle, for single angle A1 plus K A2, and what is K value, 3A1 upon 3A1 plus A2. What is A1? Effective gross sectional area of connected leg, A2 unconnected leg, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ऐसी है, जो A1 A2 जो लेना है ना, उसको IS कोड बोल रहा है किस तरह से लेना है, बता देता हूँ। देखिए IS कोड, ये एग्जैक्ट IS कोड निकाला मैंने। इसमें IS कोड A1 A2 का किस तरह से लेने के लिए बोल रहा है, नीचे नोट दिया उसमें, किस तरह से नोट दिया देखिए, पढ़ लीजिए आप समझ जाओगे। ये देखिए नोट, द एरिया ऑफ द लेग ऑफ एन एंगल शैल बी टेकन एज द प्रोडक्ट ऑफ द थिकनेस एंड द लेंथ फ्रॉम द आउटर कॉर्नर
माइनस, देखिए माइनस क्या बोल रहा है, माइनस हाफ द थिकनेस, माइनस हाफ द थिकनेस एंड द एरिया ऑफ द लेग, वो देखेंगे बाद। तो क्या माइनस करना है, देखिए माइनस हाफ द थिकनेस, यानी देखिए ध्यान से आप, तो ये जो टोटल एरिया है, मैं इसको पिंक कलर से तब तक ये कर देता हूँ, ये एरिया आपको लेना है, ठीक है। कहाँ तक लेने का, देखिए यहाँ पे ये सेंटर तक, ये इतना, ओके। क्यों ये माइनस क्यों किया, अब जैसे अभी मैंने पढ़ा था, इस थिकनेस का हाफ थिकनेस माइनस करने को बोल रहा है, इसलिए यहाँ से सेंटर में आएगा। ये 10 mm का है, तो ये हाफ यानी 5 mm ये जो डिस्टेंस है इसमें से माइनस करना है। तो ये टोटल लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक A1 इक्वल टू, A1 इक्वल टू आएगा, A1 इक्वल टू टोटल लेंथ 100 mm, ओके। उसमें से अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ये हाफ थिकनेस माइनस करना है। हाफ थिकनेस यानी थिकनेस 10 है, उसका हाफ थिकनेस 10/2, ये मैंने माइनस किया लेंथ में से, ये बनी आपकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 10 mm, ये बन गया टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक। अब उसमें से ये येलो वाला होल माइनस करना है, माइनस 21.5, ये इसका हाइट बना, इनटू ये थिकनेस, मेंबर में करना है खाली इतना ही, ओके। तो 21.5 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है 10 mm, ये बना आपका A1, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करने का, फिर से देखिए, लेंथ में से हाफ थिकनेस माइनस करो, लेंथ में से हाफ थिकनेस माइनस करो, लेंथ बनेगा, लेंथ इंटू थिकनेस ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया में से होल एरिया माइनस करने के बाद A1 बनेगा। अब A2 देखिए किस तरह से आएगा, तो इस सेंटर से, दूसरा कलर लेता हूँ, इस सेंटर से इधर तक ये वाला एरिया A2 आएगा। तो एरिया A2 कितना आएगा, देख ले, A2 इज इक्वल टू ये टोटल लेंथ 100 माइनस ये हाफ थिकनेस, ये हाफ थिकनेस, लेंथ में से हाफ थिकनेस माइनस करना है, सो 10/2 ये हुआ लेंथ इनटू ये थिकनेस 10। अब इसमें कोई होल व्हील है नहीं, तो ये बना A2, ठीक है। ये A1 और A2 फिर से देखिए, ओके। A1 देखिए, टोटल लेंथ 100, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हाफ थिकनेस माइनस करो, थिकनेस है 10 mm, तो 100 माइनस 10 का आधा 5 mm माइनस किया लेंथ में से, लेंथ इनटू थिकनेस, ये हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक एरिया। लेकिन यहाँ पे एक रिवेट प्रोवाइड किया है, उस रिवेट का ये जो येलो वाला एरिया है 21.5, 21 क्यों, 20 का डायमीटर का रिवेट है, 20 डायमीटर रिवेट के लिए 1.5 mm से ज्यादा होल का डायमीटर, 20 प्लस 1.5 21.5, ये हाइट इंटू ये थिकनेस 21.5 इंटू 10, ये बना कनेक्टेड एरिया A1। अब ये जो A2 है, इस A2 का है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100, उसमें से अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हाफ थिकनेस, देखिए इसका थिकनेस कितना है 10, 10 में से 5 माइनस हुआ इनटू ये थिकनेस 10, इसमें कुछ होल नहीं है इसलिए ये डिडक्शन कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो हर समय आपको A1 में से जो कनेक्टेड लेग होता है उसमें से ये माइनस करना होता है। क्या है ये, डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस ऑफ मेंबर, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं, ये 10 mm कॉमन निकालेंगे तो क्या होता है, इसको अगर ऐसा किया जाए, देखिए 100 माइनस 10/2 माइनस 21.5 इंटू कॉमन 10 से मल्टीप्लाई करते, ये 10 और ये 10 कॉमन निकाल के बाहर रखा, 100 माइनस ये और 10 बाहर, ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ माइनस हाफ थिकनेस माइनस डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस, ये बेटर रहेगा आपको। लेकिन आया कैसे, ये दिखाने के लिए मैंने ये किया, तो ये हमेशा A1 का वैल्यू रहेगा, ओके। अब A2 का 100 माइनस 10/2 इंटू 10, ठीक है। तो A1 में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस होल आएगा, A2 में क्या आएगा, होल नहीं आएगा, तो A1 और A2 हुआ।
Okay, so A1 and A2 are the area respectively of connected and unconnected leg. तो फिर से एक बार देख लो, हर अब देखो ये चैप्टर में इतना ही करना है, A1 निकालो A2 निकालो, A1 निकालो A2 निकालो। A1 इंटू है क्या, बस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया यानी लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ जो है एंगल का वो लेना है, खाली लेंथ में से क्या करना है, हाफ थिकनेस माइनस करना है। अगर ये थिकनेस ऑफ एंगल 10 के बजाय 8 होता तो यहाँ पे हम क्या करते, 10 के बजाय 8 डाल देते, अगर 6 होता तो 6/2 कर देते, ठीक है ना। सो लेंथ माइनस हाफ थिकनेस, ये टोटल लेंथ। तो आपको बेटर कैलकुलेशन के लिए ये अच्छा याद रहेगा, लेंथ माइनस हाफ थिकनेस माइनस डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस ऑफ मेंबर। ये कैसे आया है तो इधर दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्रॉस एरिया माइनस होल एरिया, ये 10 mm का अगर कॉमन निकालोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये A1 हुआ, ये A2 हुआ। अब ये दोनों मिला के क्या कर देते हैं, K में डाल देते हैं। सो K इज इक्वल टू 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ये वन। तो ये 3A1 का, A1 में ये वैल्यू डालो, A2 में डालो, तो मिलेगा आपको कुछ तो 0.74 वगैरह कुछ तो। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग, खाली प्रोसीजर देख लो। सपोज ये आ गया कुछ तो 72 आ गया, तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये क्या आ गया, डिपेंड्स अपॉन A1 A2। तो जैसे K मिलेगा, व्हाट इज नेट एरिया देन, नेट एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस K A2। ये A2 का वैल्यू डालो, सॉरी K का वैल्यू डालो, ये A2 का वैल्यू डालो, ये A1 का वैल्यू डालो, मिल गया आपको AN। ओके, जैसे AN मिलेगा तो व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी लोड यानी P, उसको शॉर्ट में LCC बोलते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी P इज इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू AN आएगा। सिग्मा 80 का वैल्यू 150 फिक्स रहेगा, है ना, और ये AN वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो सिग्मा 80 इंटू AN ये बन जाएगी वैल्यू आपकी, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए पहले से, तो फर्स्ट केस ऑफ सिंगल एंगल यानी एक एंगल ये इस तरह से, ये पीछे वाली गसेट प्लेट है, जैसे मैंने अभी 3 डायमेंशनल बना के दिखाया था, और एक बार दिखा दूं, ये अभी अभी मैंने यहाँ पे ओपन विथ पेंट ये निकाला था अभी, है ना, सही है। देखिए कैसे बना था ये, ओके, ये वाला ग्रॉस एरिया था, यहाँ में से हम होल माइनस करेंगे, होल किस तरह से माइनस करना ये दिखाया था यहाँ पर। सिंगल एंगल इस तरह से, अगर एक कनेक्टेड लेग निकाला, कनेक्टेड, तो अगर इस तरह से आप अगर कनेक्ट करोगे तो बनेगी आपका इस तरह से, यहाँ पे आ जाऊंगा। तो आया से 100/100/10 फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया सिंगल एंगल के लिए, सिंगल एंगल का एक लेग कनेक्टेड रहेगा, ये यहाँ पे। अब इसमें वैरायटी बता रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं इक्वल एंगल, इसको बोलते हैं इक्वल एंगल। ये इक्वल एंगल का मतलब हुआ दोनों लेग, इसको लेग बोलते हैं, दिस इज अ लेग, कनेक्टेड लेग, दिस इज अ आउटस्टैंडिंग लेग और अनकनेक्टेड लेग। तो ये कनेक्टेड लेग अनकनेक्टेड लेग दोनों का लेंथ 100 है, तो इसको बोलते हैं इक्वल एंगल। अगर मान लीजिए 100/75/10 होता तो इसको बोलते हैं अनइक्वल एंगल। एक 100 का है, दूसरा 75 का है। अब 100 कनेक्ट किया है या 75 कनेक्ट किया है, ठीक है ना, सो दैट विल बी मेंशन इन द प्रॉब्लम, लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड बोलेंगे। अगर इसको कनेक्टेड किया है तो बोलेंगे शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज विद along the given wording which kind of angle section is given। तो इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल दो एंगल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इक्वल एंगल लिया, यहाँ का जो है ये 100 इधर कनेक्टेड लेग का, उसमें से ये होल वाला जो है, होल वाला डायमीटर खाली माइनस करना है। किस तरह से माइनस करना है, देखिए लेंथ माइनस हाफ थिकनेस, हाफ थिकनेस क्यों, आईएस कोड बोल रहा है लेंथ में से हाफ थिकनेस माइनस करो, तो हाफ थिकनेस माइनस किया, 21.5 ये डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस, ये याद रखेंगे हम लोग, आसान हो जाता है। ये कैसे आया दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए ये सिंगल एंगल का था, इस तरह से करना है, A1 A2 वगैरह। अब देखिए थोड़ा सा ठीक तरह से पढ़ते हैं, केस ऑफ सिंगल एंगल थ्रू वन लेग,
नेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया AN इज कैलकुलेटेड बाय दिस वन. ओके, अब देखिए इन केस ऑफ पेयर ऑफ एंगल यानी डबल एंगल होता. अब डबल एंगल कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं. बैक टू बैक connected by one leg of each angle to the same side of the gusset. Okay, ये वाला एक केस है. To the same side of the gusset. The net effective area shall be taken as etc. लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर. The length is the the angle shall be connected together along with the length in accordance to the requirement under ये 8.10.3.3. ये क्या था लास्ट टाइम बताया मैंने. इसको बोलते हैं टैकिंग. समझा देता हूँ टैकिंग क्या चीज है. ठीक है, तो डबल एंगल का बैक टू बैक पहला है ईच एंगल कनेक्टेड ऑन सेम साइड विथ, ये देखिए विथ टैकिंग. अब दूसरी केस है फॉर डबल एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड ऑन ईच साइड ऑफ द गसेट. ओके, रोल्ड सेक्शन computing shall be connected together along with the specified etc. और ये दूसरा वाला केस है अभी जो मैंने पढ़ा था 8.10.3 वाला, कैसे कनेक्ट करना है. हाँ, तो एक बार एक पहले से आ जाता हूँ. ये स्ट्रेस के बारे में हुआ. अब ये सिंगल एंगल के बारे में. अब दूसरा है पेयर ऑफ एंगल. ये आ गया इधर पेयर ऑफ एंगल. बता देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए इसको. ठीक है, देखिए इधर क्या आ रहा है 5A1 आ रहा है. सिंगल एंगल में कितना था देखो 3A1 है. डबल एंगल में देखो कितना है 5A1 है. ओके, तो मैं पावर असर का देखो एक का तिर्री दुर्री पंजा बोलते रहता हूँ. एक का तिर्री दुर्री पंजा. एक एंगल के लिए 3, दो एंगल के लिए 5, एक का 3, दो का 5. ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको. आपके पास तो आईएस कोड होता ही है, लेकिन आईएस कोड खोल के देख के करने के लिए बहुत सारे समय जाता है. जितना याद रख सकते हो उतना रखना है. खाली एक क्लॉज नंबर लिखने के लिए आईएस कोड रेफर करना है. कैसे करना दिखेंगे. तो एक के लिए 3 होता है, दो के लिए 5 होता है, बाकी सब सेम है. कैसे मैं बता रहा हूँ. देख सिंगल एंगल का अभी अभी मैंने करके दिखाया था. जैसे यहाँ पे देखिए A1 निकाला, A2 निकाला, के फॉर्मूला में डाला, के मिलेगा. के मिलने के बाद इस फॉर्मूला में डालो A1 A2 के सारा पुटअप करने के बाद AN मिलेगा. AN का वैल्यू फिर फॉर्मूला में डालने के बाद कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू डालने के बाद P मिलेगा. ठीक है, तो डबल एंगल की जो मैं बात कर रहा था, ओके, ये सिंगल एंगल का. अब डबल एंगल का देखिए क्या 5. अब देखिए ध्यान से देखिए केस नंबर 2 बता रहा हूँ. केस नंबर 2 बता रहा हूँ. पहला था सिंगल एंगल का जिसमें के में 3 था. अब डबल एंगल को इधर 5 है, लेकिन कौन सा है ध्यान से देखिए. कनेक्टेड बैक टू बैक समझा देता हूँ, और सिंगल टी वो देखेंगे बाद में. पहले है सिंगल एंगल बैक टू बैक बाय वन लेग ऑफ ईच एंगल. राइट, किधर है देखिए टू द सेम साइड ऑफ द गसेट. ओके, टू द सेम साइड ऑफ गसेट क्या चीज है ये दिखा देता हूं. देख ये बीच में है यहाँ पर गसेट प्लेट. ये एंगल इधर का कनेक्ट किया आपने. अब गसेट प्लेट के दूसरे बाजू में एक अगर एंगल कनेक्ट करोगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं ये गसेट प्लेट है. तो बोथ साइड ऑफ द गसेट और आइदर साइड ऑफ द गसेट और ईच साइड ऑफ द गसेट, उसके बदले अगर इस गसेट प्लेट को एक ही साइड में ये पहला एंगल इधर कनेक्ट किया, उसके नीचे ये दूसरा एंगल कनेक्ट किया. ये गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट है. ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, दोनों एंगल एक ही साइड पे कनेक्ट किया है, सेम साइड ऑफ द गसेट. ये बोथ साइड ऑफ द गसेट. तो केस नंबर 2 जो मैं बता रहा था ये थी कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट. देखिए कनेक्टेड ऑन इधर देखिए सेम साइड ऑफ द गसेट. सेम साइड ऑफ द गसेट विथ टैकिंग. ये क्या है टैकिंग देखो. अब ये जो रिवेट है ये क्या करने वाला है, एंगल को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करेगा.
एंगल को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करेगा। कैसे दिख रहा था ये, देखिए मैं बीच दिखाता हूँ। ये गसेट प्लेट, ये एंगल आ गया इधर से, पहला एंगल, ये उसके नीचे ये दूसरा एंगल, ये एलिवेशन में दिखाया मैंने। ये नीचे वाला गसेट प्लेट, कहाँ है ये जॉइंट, ये देखिए ऐसे, ये ट्रस, ये इधर गसेट प्लेट, ये टेंशन मेंबर। तो ये टेंशन मेंबर इधर है, ये गसेट प्लेट यहाँ पर है, ये पहला वाला एंगल ये वाला, ये दूसरा वाला एंगल ये वाला। तो ये एक एंगल के नीचे दूसरा एंगल, एक नीचे के दूसरा। ये फ्रंट व्यू में दिखा रहा आपको। अगर यहाँ पे ऐसे सेक्शन लिया जाए तो क्या दिखाई देगा, ये गसेट प्लेट की थिकनेस दिखाई देगी इधर, ये एल शेप में एंगल दिखाई देगा, दूसरा एल शेप में एंगल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू में दिखा आपको, ये सेक्शन में, और ये कहाँ पर आ रहा ट्रस में, ये उसका लोकेशन बताया मैंने, ये जॉइंट मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो ये कनेक्ट करते समय यहाँ पे ऐसे बोल्ट डालेंगे या रिवेट डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सेक्शन लिया इस तरह से। तो यहाँ पे सेक्शन लेने के बाद गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट, ये एंगल, ये एंगल, ये दूसरा एंगल, दूसरा एंगल, इस बोल्ट का होल ये यहाँ पर है, ये इसका होल ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट। ठीक, अब बैक टू बैक का मतलब क्या हुआ, देखिए इस एंगल की बैक को दूसरा एंगल का बैक है, ये बैक टू बैक बोलते हैं। यानी एक एंगल के साथ दूसरा एंगल कनेक्ट करोगे तो ये बैक टू बैक हुआ, ये भी बैक टू बैक हुआ। बैक टू बैक यानी एक एंगल के साथ दूसरा एंगल का लेग बिल्कुल एक साथ कनेक्ट करना है, इसको बैक टू बैक बोलते हैं। फेस टू फेस ऐसे होता है, ये दो एंगल कनेक्ट है लेकिन फेस टू फेस, ये बैक टू बैक। अब बैक टू बैक है, ये देखिए ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, बैक टू बैक है लेकिन दोनों एंगल एक ही साइड है। सो बैक टू बैक ऑन सेम साइड। ये भी बैक टू बैक है लेकिन बोथ साइड ऑफ द गसेट है। ये वाली जो है ना, ये गसेट प्लेट है, ये देखिए ये वाली, ये गसेट प्लेट है बीच में, ये गसेट प्लेट। गसेट प्लेट के एक साइड में दोनों एंगल है लेकिन बैक टू बैक है। सो बैक टू बैक सेम साइड, बैक टू बैक ऑन बोथ साइड ऐसे। तो ये केस नंबर 2 हुआ। ये केस नंबर 3 होता है, लेकिन इनमें आता है एक टैकिंग रिवेट बोल के आता है। टैकिंग रिवेट क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ में आएगा। ये जो बोल्ट्स है या रिवेट्स है, ये क्या कर रहे हैं, मेंबर को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग बोल्ट्स, कनेक्टिंग रिवेट्स। गसेट प्लेट यहाँ पे खत्म हुआ, ये गसेट प्लेट यहाँ पे खत्म हुआ, ये गसेट प्लेट है यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये मेंबर आगे रन हो रहा है ऐसे, ये मेंबर आगे रन हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये दो एंगल, ये दो एंगल यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं, ये इधर इस तरह से, अरे बाप, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इधर, ये यहाँ पर थ्रू आउट द लेंथ, यहाँ पे इधर 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 इधर। तो दो एंगल एक दूसरों के साथ थ्रू आउट द लेंथ कनेक्ट करने के लिए जो बोल्ट या रिवेट होते हैं उसको बोलते हैं टैकिंग रिवेट्स। यानी ये दो एंगल एक दूसरों के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। भाई टाइम खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको। तो ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं टैकिंग वाला कनेक्शन, और ये जो है ये कनेक्शन वाले हैं। ठीक है, और एक बार दूसरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देख दोनों एंगल और एक बार दिखा देता हूँ। ये इधर का एंगल, ओके, उसके नीचे अब ये दूसरा एंगल, ये इस तरह से एंगल, ये एंगल का थिकनेस दिख रहा है आपको। ओके, 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की। अब इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गसेट प्लेट लाके कनेक्ट करेंगे इधर। तो इस एंगल को गसेट प्लेट के एक ही बाजू को कनेक्ट किया, इधर वन साइड कनेक्ट किया। ठीक है, कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पे बोल्ट डाला या रिवेट डाला। तो ये जो रिवेट है गसेट प्लेट को एंगल को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रिवेट्स।
अब यहाँ पे एक बोल्ट डालूंगा मैं, ये यहाँ पर, ये क्या करेगा, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल को कनेक्ट करेगा ऐसे। तो ये दो इंडिविजुअल एंगल को कनेक्ट करने वाली ये जो रिवेट है, इसको बोलते हैं टैकिंग। यानी ट्रस में देखा जाए तो यहाँ पे गसेट प्लेट है, इधर एक गसेट प्लेट है, ये वाली गसेट प्लेट, इधर का जॉइंट निकाला मैं, ये जॉइंट, ये गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट, ये दो एंगल, ये दो एंगल, यहाँ पे कनेक्ट किए हुए बोल्ट ये इधर है। अब जैसे गसेट प्लेट खत्म हुआ, ये गसेट प्लेट खत्म हुआ, इसके आगे जब मेंबर रन हो रहा है, इसके आगे जो मेंबर रन हो रहा है उसमें ये दो एंगल है, इस दो एंगल को ऐसे कनेक्ट किया जाएगा थ्रू आउट द लेंथ, ये यहाँ पर। तो ये थ्रू आउट द लेंथ ये दो एंगल एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं टैकिंग। तो ये टैकिंग जब प्रोवाइड करते हैं और एक साइड में होता है तो केस नंबर 2 बना। ठीक, अब ऐसे ही टैकिंग प्रोवाइड करने के बाद अगर गसेट प्लेट के दो साइड में दो एंगल, ये बीच में गसेट प्लेट, एक इधर एंगल एक इधर एंगल, उसका डायग्राम कैसे आएगा, ये नीचे वाला एंगल ये साइड में आएगा, देखिए इस तरह से, ये पहला वाला एंगल, ये बीच में आ गई गसेट प्लेट, ये बीच में गसेट प्लेट और इधर एक एंगल। ओके, ये गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट, ठीक है। ये साइड में एक एंगल आ गया, इधर दूसरे साइड में ये एंगल है इधर, तो गसेट प्लेट बीच में आ गया, इधर एक एंगल इधर एक एंगल, बैक टू बैक ही है, ये भी बैक टू बैक ही है। हाँ, तो ये जो बोल्ट है गसेट प्लेट को कनेक्ट करने के लिए काम आएंगे। जब गसेट प्लेट खत्म होगा उसके आगे जो एंगल रन होंगे वो दो एंगल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए टैकिंग होता है, ठीक है। तो केस नंबर 1 2 3 एक बार रिवाइज करता हूँ। केस नंबर 1 सिंगल एंगल गसेट एंगल। केस नंबर 2 गसेट के एक साइड में दो एंगल विथ टैकिंग, इस तरह से टैकिंग प्रोवाइड किया है। केस नंबर 3 गसेट प्लेट के दो साइड दो एंगल और टैकिंग प्रोवाइड किया हुआ, ये टैकिंग प्रोवाइड किया हुआ विथ टैकिंग। केस नंबर 1 सिंगल एंगल। केस नंबर 2 वन साइड विथ टैकिंग। 3 नंबर केस बोथ साइड विथ टैकिंग। और 4 नंबर क्या है, फिर एक साइड हो या दो साइड हो लेकिन टैकिंग प्रोवाइड नहीं किया, तो ये हुआ 4 नंबर केस। टाइम खत्म हो रहा है, पहले से देता हूं। सिंगल एंगल एक, डबल एंगल वन साइड विथ टैकिंग, डबल एंगल बोथ साइड विथ टैकिंग। 4 नंबर वन साइड हो या बोथ साइड हो लेकिन बिगर टैकिंग वाला 4 नंबर केस है, ठीक है। कल कंटिन्यू, अभी कहाँ है, थर्सडे